اور یو آر لائف کا ایمپٹی ویسل، آپ خالی برتنوں کی طرح، خالی برتنوں کی طرح۔ تو آج ہم بات کریں گے خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے، شیپ دینا چاہتا ہے، اور ہم خالی برتنوں کی طرح، اور وہ ہمیں بننا چاہتا ہے۔ ہم کن چیزوں سے بھرے ہیں اور وہ ہمیں کن چیزوں سے بھرنا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے میں سب دیکھیے گا یرمیا نبی کا صحیفہ، اس کا پرانے عہد ناموں سے یرمیا نبی کی کتاب صحیفہ، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جن کے پاس خدا ان کا زندگی بخش کلام ہے میرے ساتھ نکالیے یرمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات مبارکہ۔ کتاب مقدس میں یہ مرقوم ہے، خداوند کا کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا، اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ 30 آیت۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ چاک کہتے ہیں اس پہی کو جو گول گول گھومتا ہے اور جس کے اوپر اس نے اپنا وہ برتن رکھا ہوتا ہے، جس کو وہ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے مٹی کو۔ چاک پر کچھ بنا رہا تھا۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ 5ویں آیت۔ تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ کتاب مقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ یہ اقتباس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ یرمیا پر نازل ہوا۔ جب خداوند کا کلام یرمیا پر نازل ہوا تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ یرمیا تو بڑی ہیکل میں جا، تو بڑے کسی چرچ میں جا، تو کسی ریلیجیس پرسن کے پاس جا، کسی امیر بندے کے پاس جا۔ خدا کے کلام اس طرح سے ظاہر نہیں ہوا، بلکہ خدا کا کلام اس طرح سے ظاہر ہوا کہ کمہار کے گھر میں جا، نچلی ذات کے اس بندے کے گھر میں جا جہاں پر شاید تو کبھی پہلے نہیں گیا۔ شاید یرمیا اس سے پہلے اس کمہار کے گھر میں نہیں گیا، کیونکہ اس کا کیا سٹیٹس ہوگا کہ وہ مٹی کے برتن بنا، کوئی سٹیٹس نہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں بغیر کسی جگہ تفریق کے، بغیر کسی امیر اور غریب کے فرق کے میں کلام کر سکتا ہوں، بغیر کسی بڑے اور چھوٹے چرچ کے، بغیر کسی ہوم چرچ اور چرچ بلڈنگ کے فرق کے میں کلام کر سکتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا یرمیا تو وہاں پر جا، جیسے یونا سے کہا، یونا تو آ جا، رکا گیا تفسیر کو۔ اب یرمیا کے ساتھ بھی ایسے یرمیا خدا کے گھر کمہار کے گھر میں جاؤ، یرمیا تو کہ کمہار کے گھر میں جاؤ، وہاں پر مجھے کیا سیکھنے کو ملے گا؟ وہاں پر تو مجھ سے کیسے کلام تو یہاں پہ بھی کر سکتا ہے، میں کمہار کے گھر میں کیوں جاؤں؟ اس نے ایسا نہیں کہا، وہ تھا خدا کے کلام کو لیا اور کمہار کے گھر میں چلا گیا۔ جب کمہار کے گھر میں پہنچا تو اس بات کو یاد رکھیں، لکھا ہے کہ کمہار جو ہے وہ چاک پر، اس پہیے پر جو گھوم رہا تھا اس پہ مٹی کو لیے ہوئے تھا اور کسی برتن کی شیپ بنا رہا تھا، اور اس کو بناتے بناتے اس کی شیپ بگڑ گئی، اس
اس نے اس کو چاند پر سے اتارا اور دوسری مٹی دی. It's a secret of this message. ابھی ہم چاند پر ہیں, ابھی سانسیں چل رہی ہیں, ابھی خدا نے آپ کو زندگی دی ہے, تمہارا کا رسول نہیں ہے. مٹی سخت ہو گئی. جب مٹی سخت ہو جائے گی, مٹی کے سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ We are کیا ہے؟ ہم مٹی ہیں. ہم مٹی کی طرح سخت کیسے ہوتی ہے؟ روح سے تو کپڑ سے. تمہارا کہہ رہے خدا نے کہا کہ جیسے یہ مٹی تمہارے ہاتھ میں ہے, ایسے ہی اسرائیل تم میرے ہاتھ میں ہو. تم میرے ہاتھ میں ہو. ابھی زندگی ہے, پہیا گھوم رہا ہے, آپ چاند پر ہیں. اپنے آپ کو سخت نہ کریں. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی. یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہیے سب سے پہلا کام وہ کیا کرے؟ اپنی خود ہی کا انکار کرے, اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے. کہ جس طرح سے کمہار کی انگلیاں آپ کو شیپ دیتی ہیں, آپ ویسے ویسے چلے. ہاللیلویہ. اور وہ کلام سے آپ کو شیپ دینا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. کلام میں لکھا ہے کہ مڑ جاؤ, ان کاموں سے بولو, آپ نے شیپ میں آ جائے. مڑ جائے وہاں سے. خدا آپ کو اچھی چیز بنانا چاہتا ہے. اگر اس نے آپ کو اچھا بدن, اچھا دل, اچھا دماغ, اچھا فیس آپ کو اچھا انسان بنایا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی مرضی میں رہتے ہوئے روحانی طور پر بھی اچھے بنیں. اور کمہار کے ہاتھ میں رہنا مطلب کہ زندگی میں ہے. اور جیسے کمہار نے چاند پر سے اس کو اتارا, دوسری مٹی کو لیا, خدا نے کہا دیکھ میں ایسے ہی اسرائیل کے ساتھ کر سکتا ہوں. میں اس کو چھوڑ کے کسی اور قوم کو, میں اس بندر کو چھوڑ کے کسی اور بندے کو یہاں پر کھڑا کر سکتا ہوں. میرے ہاتھ میں ہو تم. ہم جو خدا کے نام سے کہلائے جاتے ہیں, ہم جو اس کے کلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, ہم جو اس کے کلام کو سنتے ہیں, ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں. یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 64 باب اس کے 8 آیت میں لکھا ہے, تو یہ خداوند تو ہمارا باپ ہے, ہم مٹی ہیں, تو ہمارا کمہار ہے, اور ہم سب کے سب تیرے ہاتھ کی دستکاری ہے. ہاللیلویہ. ہم خدا کے ہاتھ کی دستکاری. اس بات کو یاد رکھیں. میں آپ کو روحانی پہلو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ چاند پر ہیں, خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو شیپ دے, اور آپ کا کام ہے کہ آپ جیسے خدا آپ کو ڈالتا ہے آپ کریں. پالوس رسول نے کہا کہ چاند پر ہونے کا مطلب اس نے کہا کہ ہم دوڑ رہے ہیں کمال کی طرف. ہم بڑے شوق سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف دوڑ رہے ہیں. اور اچھی کشتی لڑی, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا. یہ پالوس کے الفاظ ہے. اس نے دوڑ کو ختم کر دیا. اس نے کہا میں نے اچھی کشتی لڑی. اس کا مطلب کہ ہم پروسیس میں ہیں. We are in process. We are making. ہم بنائے جا رہے ہیں. خدا ہمیں ڈالنا چاہتا ہے. جب آپ دلوں کو سخت کر لیتے ہیں, خدا آپ کو کیسے ڈالے گا؟ جب آپ یہاں پر آ کر سو جاتے ہیں, کلام کو سنتے ہی, تو خدا آپ کو کیسے ڈالے گا؟ کیسے خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آئے گا؟ We are wasting the time. ہم ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں. یہاں پر بڑے اچھی نیند آتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. میں لوگوں میں لکھا ہے کہ ابلیس نہیں آتا مار ڈالنے کو, ہلاک کرنے کو, وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ کلام کو چرا کر لے جائے. وہ کلام کو چرانا چاہتا ہے. 4 طرح کی زمین ہے, اور جس کے دل کی زمین اچھی ہے, کلام ٹھہرتا ہے, کلام رکتا ہے, کلام اثر کرتا ہے, کلام ڈھل جاتا ہے. اور جس کے دل کی زمین سرتیز نہیں ہے, اور 3 طرح کی زمین ہے, 3 کیٹیگریز میں آتی ہے, تو اس میں کلام ٹھہرنے کی جب پکڑے گا, دھوپ پڑی, سوکھ گیا, پھر میں دبا لیتی. یہ سب سے اس کی وضاحت بھی کر دی. اس بات کو یاد رکھیں, خدا آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے. آپ مٹی ہیں, اپنے آپ کو سخت نہ کریں.
अपने दिलों को सख्त ना करें। शायद खुदा आपको किसी और तरफ मूव करना चाहता है। आप टीचर बनना चाहते हैं, खुदा आपको प्रीचर बनाना चाहता है। आप नर्स बनना चाहते हैं, खुदा आपको डॉक्टर बनाना चाहता है। खुदा का प्लान आपके लिए जो है उसके मुताबिक चलना शुरू करें। अपने घरानों में, अपने घर में, अपने बच्चों की प्लानिंग में, अपने रिश्तों की प्लानिंग में, अपने कारोबार की प्लानिंग में, अपने बच्चों की स्कूल्स की प्लानिंग में, अपने घर की एक बड़ी से छोटी प्लानिंग में खुदावंद को अपने सामने रखें, उसको अपने साथ रखें, वो आपके साथ रहना चाहता है। लम्हे फिक्र है, आप खुदा के हाथ में, अभी आप चांद पर हैं। ये ना हो कि आप चांद पर से उतर जाए और आपकी जगह कोई और ले ले। अभी चांद पर हैं, ढलने दे अपने आप को जिस तरह से वो आपको ढालता है। आपको शेप देना चाहता है, आपको डिजाइन करना चाहता है। और बाइबल में लिखा है, मैं तेरी बाबत अपने प्लान को जानता हूं, जो अच्छाई के हैं बुराई के नहीं। हालेलुया। जो अच्छाई के हैं वो आपको कलाम से बढ़ना चाहता है, वो आपको कामयाब शख्स बनाना चाहता है, आपको कामयाब बेटा, कामयाब बेटी बनाना चाहता है। मैंने लास्ट में कहा कि अच्छे मालिक, अच्छी कंट्रीज, अच्छी कंट्रीज के वीजे, अच्छी गाड़ियां, सब कुछ खुदा ने अपने बेटे और अपनी बेटियों के लिए रखा है। जरूरत है कि अपने आप को झुकाएं, खुदा से कहें तो मुझे शेप दे। खुदा आपको शेप देना चाहता है और शेप देकर आपको भरना चाहता है। मैंने पहले कहा कि आज का हमारा टॉपिक है, खुदा हमें शेप देना चाहता है और हमें भरना चाहता है। याद रखें, हम इस दौर में दौड़ रहे हैं। अगर हम अच्छी दौड़ नहीं दौड़ेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा। आप देखेंगे में पौलुस रसूल ने कहा कि दौड़ में तो सब है, तो ये दिन आप एक लेगा, ये 2 या 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन हार भी जाते हैं। ये मत समझे कि हम चर्चिस में, क्या हम मसीही लोग जो हैं, जो चर्चिस में बैठने वाले लोग हैं, ये निजात को खो सकते हैं? सवाल है, साथ लेकर इस पर भी बात करेंगे कभी खुदा ने मौका दिया। क्या मसीही हमेशा की जिंदगी खो सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। हम अभी प्रोसेस में हैं, हम चांद पर हैं। खुदा हमें ढालना चाहता है, खुदा हमें संभालना चाहता है, खुदा हमें बनाना चाहता है, खुदा हमें भरना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा, दूसरा सलाती उसका 4वां बाब, रूथ और सैमुएल के बाद है। दूसरा सलाती उसका 4वां बाब और उसकी पहली आयत है। हालेलुया। दूसरा सलाती उसका 4वां बाब उसकी पहली आयत। और यजानों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम गुलाम से डरता था। सो अब कर्ज को आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। एलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा तेनाली के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं, बर्तन है। बर्तन, पहले कहा कि बर्तन पर हम बात कर रहे हैं, बर्तन है, खुदा ने हमें बनाया है। यहाँ पर इस स्टोरी का रूहानी पहलू आपको बताने लगा, शायद इससे पहले आपने इसको इस सप्ताह से नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर लिखा है, उसने कहा टेटेलॉनी के पास घर में एक प्याला तेल के साथ कुछ नहीं। इसलिए तो उसने कहा तो जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आराए थे, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। चौथी आयत, फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना।
5 सो वो उसके पास से गई, उसने अपने बेटे को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास लाते जाते थे और वो बुंदेलती जाती थी। और जब वो बर्तन बन गए तो उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे पास एक और बर्तन ला, और इसी तरह से वो बर्तनों को भरते रहे। हालेलुया। किताब मुकद्दस के बड़े चुने सच्चे और कबूल के जाने पर खुदा की बरकत हो। कितने लोगों को नींद आ रही, कितने लोगों को बरकत मिल रही है? जोरदार बात खुदा के नाम पे, जोरदार बात। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बात बताने लगा, we are empty vessels front of God। हम खुदा के सामने एक खाली बर्तन की तरह हैं। इस औरत ने कहा कि कर्ज को आए थे, मेरे बेटों को ले जाएंगे, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। और एलीशा ने कहा कि जा, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि मेरे घर में एक बर्तन है, थोड़ा सा उसमें तेल है। That means कि तेल जो है वो बाथरूम को रिप्रेजेंट करता है, तेल जो है वो कलाम को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखें कि इसका जो हस्बैंड था वो नबी था, ये नबी की बीवी थी, और ये नबी की बीवी कलाम को समझने वाली, यहोवा पाक खुदा पर ईमान रखने वाली थी, और ये कलाम को जानती थी। अगरचे बरकत थी लेकिन बहुत थोड़ी थी। खुदा के साथ चलने वाले लोगों, अगरचे आपके वसाइल कम है, आपके अखराजात ज्यादा है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, थोड़ा है, खुदा ये चाहता है कि एक अमल करें जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं, तो आप भरना शुरू हो जाएंगे। खुदा आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इट्स द सीक्रेट ऑफ दिस पॉइंट जहां पर आज मैं बात कर रहा हूं। आप खाली बर्तन की तरह। उसने कहा, एलीशा ने कहा तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि बर्तन है एक और उसमें है तेल, मतलब कि मेरे घर में बरकत थोड़ी है और कलाम को समझती हो। बरकत थोड़ी है लेकिन कलाम को समझती हो। अब एलीशा ने कहा कि जा अपने नेबर में, अपने हमसायों के पास जा और वहां से खाली बर्तन ले, और जब तू उन खाली बर्तनों को लेकर आए तो दरवाजे को बंद कर लेना, और फिर तू और तेरे बेटे अंदर जाए, और जो तेरे पास बरकत है उसको उसमें वो ढेरते जाना, और वो बर्तन भी भरते चले जाएंगे। हालेलुया। That means कि खुदा अनाइट करना चाहता है। खुदा चाहता है कि जो लोग बरकत में कम है वो खुदा के कलाम के लिए निकले, और उन लोगों को ले जो कलाम से खाली है, उनको ले अपने घर में इबादत शुरू करें। कहां पर भी आप इबादत शुरू करके खुदा आपको बरकत देने की कुदरत रखता है। और इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें कि खुदा हमें भरना चाहता है। अगर आप पहले से भरे हुए हैं, आप खाली बर्तन की तरह नहीं है, कैसे वो आपको भरेगा? आप उसके नाम से कहलाए जाते हैं। एलीशा ने कहा कि खाली बर्तन दे दिया और वहां पर रखो और दरवाजा बंद करो। फिर खुदा का आसमान जो है वो खुलता। 120 की जमात पर क्या हुआ था? दरवाजा बंद था तो वो मसा से भागे, गैर जुबानी बोलने लगे। आपकी शोला किसी भटकी हुई जुबानी और पर नाजिल हो गई। जब दरवाजा बंद होता है खुदा का मसा आता है। यीशु मसीह ने भी कहा अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और कुशीदगी में जाकर दुआ कर, तेरा बाप जो कुशीदगी में है तुझे जवाब देगा। हालेलुया। और यहां पर भी भरने का अमल है। खुदा आपको भरना चाहता है, वो आपको शेप देना चाहता है, और वो आपको भरना चाहता है, और आपने खाली बर्तन की तरह उसके सामने आना है। याद रखिए, मेरे पास एक बॉक्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बॉक्स है मेरे पास, एक स्प्रेड है, ये बिस्किट का बॉक्स है, खाली है। इसकी वुकत कोई नहीं है क्योंकि इसमें बिस्किट नहीं है।
क्योंकि इसमें नहीं है। आप इसकी वक़्त नहीं है क्योंकि इसमें बिस्किट नहीं है, बिस्किट है तो इसकी वक़्त है। आप एक खाली बर्तन की तरह, लाइक दिस बॉक्स, खाली बॉक्स उठाया बाहर फेंक दिया, इस्तेमाल नहीं किया। इसकी कीमत तब बनती है जब इसमें ये भर जाए, तब इसकी कीमत है। जब लोग इसको लेंगे और अपने घर में ले जाएंगे और अच्छी जगह पर रखेंगे, और जब ये खाली होगा कहेंगे ये तो अभी जगह रखे हुए, इसको उठाओ और बाहर फेंक दो और ये वेस्ट हो जाए। सेम लाइक दैट। ये कितने का होगा? 1 रुपए का भी नहीं होगा, या शायद 2 रुपए का होगा, 3 रुपए का। जब बिस्किट आ जाएगी तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, तब ये 100 में चला जाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे तो 1000 में चला जाएगा। कभी ऐसा हुआ आप चाय की दुकान पर गए हो और चाय वाले से कह रहे कि मुझे एक गर्मा गर्म चाय दो, और वो चाय ले और ऐसे आपके ऊपर फेंक दे, ये लो आपके हाथ पर डाल दो। अरे बेवकूफ हो, ये क्या कर रहे हो? इसको बर्तन में डालो। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, ये बिस्किट है, आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में और बहुत सारे आप प्रोडक्ट लेते हैं और उन सारे प्रोडक्ट्स को आप इकट्ठा करते हैं और ऐसे देखते हैं कोई यहाँ से गिर रहा हो, कोई वहां से गिर रहा हो, कोई यहाँ से गिर रहा हो, तो लोग आपको देखते हैं कि भाई एक बड़ा पैकिंग वाला शॉपर हो, उसमें डाल दो और इतनी सारी चीजें महफूज रह जाएंगी। ये कभी ऐसा हो कि ये खाली बॉक्स है जिसकी कोई भुगत नहीं है, ये जिस ब्रांड है इसमें ये बिस्किट ना हो कोई और, इसमें थोड़ा करके डाल दें, तब भी आप कहेंगे आप घर में रख लें, ये भी आप घर में नहीं रखें। इसका मतलब कि जो चीज जिस चीज के लिए बनाया गया, अगर वही चीज इसमें हो तो इसकी अहमियत है। तो इस बात को याद रखें कि आप खुदा की इबादत के लिए, कलाम से भरने के लिए बनाए गए हैं। इसी से आपकी वक़्त है, इसी से आपकी अहमियत है। अगर आप अपने आप को किसी और चीज से भरते हैं, आप प्रोडक्ट को किसी और को भर रहे हैं और ब्रांड आप कुछ और है, आपको खुदा ने अपना बेटा और बेटी बनाया और आप गंदी गंदी चीजों से भरे जा रहे हैं, तो फिर भरे जा रहे हैं, तो फिर भी अगर इंसान होते हुए आप इस चीज को, अगर इसमें कुछ और हो तो फिर आप इसको घर से बाहर निकाल देंगे। आप कहेंगे जिस चीज के इसके बाहर साइन है, जिसके लिए मोहर किया गया है, वही प्रोडक्ट इसके अंदर हो तो फिर अच्छा है, नहीं तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं, ये खाली है, ये किसी और चीज से बड़ा है, फिर दोनों सुनते हुए हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इस बात को याद रखें। I will say like this, आप खाली बर्तन है, आपकी ऐसे कोई भूखत नहीं है। खाली बर्तन आप इंसान होते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह का कोई बॉक्स जो खाली हो तो आप सेम लाइक बॉक्स, चाय के लिए आप कहते किसी चीज पे ढालो तो फिर खुदा के कलाम भी ऐसे है, वो चाहते हैं प्रोडक्ट हो खाली हो तो मैं इसे कलाम से भरूं, वो आपको कलाम से भरना चाहता है, अपने आप को खाली वो आपको एम्प्टी करना चाहता है, वो आपको खाली करना चाहता है, अपने आप को खाली कर। अगर पहले से भरे हुए हैं इस बॉक्स में, अगर ये पहले से भरा हुआ है, इसमें कुछ और भी डालूं, पहले गनमन से भरा, ऊपर से मैं सब चीजें इसमें डाली जाऊं जिसके लिए बनाया गया, वो ऊपर बिस्किट रखो तो गिर जाए, कि नीचे कुछ और है, तो इसलिए पहले वो निकालो जो पहले है, पहले अपने आप को खाली करें, पहले अपने अंदर से गुस्सा, हसद, तकब्बुर, नफरतें, भगस, गुस्से निकाले। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 14 ऐसी चीजें हैं, 14 थिंग्स ऐसी हैं जो आपको हमेशा की जिंदगी में जाने से रोक सकती है। से याद रखें आपने किन चीजों से अपने आप को बने। ये खाली बर्तन थे, अलीशा ने कहा खाली बर्तन साइडों से लोग जितने भी आ जाए, आप घरों में इबादत शुरू करें, खाली बर्तनों को ले, उनको लेकर आए, उनको कहीं अगर आप भरे भी अपने आप को खाली करें। यहाँ पर हम खुदा के नाम के लिए काम करेंगे, यहाँ पर हम कलाम की बातें करेंगे और आपको कलाम से भरेंगे।
हकीकत आपके गिराने की भी बरकत का बायस बन सकता है। आपके कर्ज उतर सकते हैं, आपकी नाकामियां जा सकती है। बाइबल मुकद्दस का ये असूल है, दूसरे लोगों को लो, जो कलाम है उसको दूसरे के साथ शेयर करो और फिर आपके गिराने में बरकत आएगी। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ पूरी दुनिया में इंजील की बुराई करो, जहां तक जा सकते हो जाओ, और मैं दुनिया में आके तक तुम्हारे साथ हूं। अगर आप कलाम की बुराई कर रहे हैं तो बरकत आएगी, आपके गिराने खुशहाल होंगे। यीशु ने कहा अगर आप ये काम करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिनके साथ यीशु है उनको तोड़ हो सकती है, उनको कमी हो सकती है। यीशु के लिए जोर आता है और जो हम कलाम पर सकते हैं, वो चाहते हैं कि आप खाली बर्तनों की तरह रहें। अगर इंसान होते हुए आप में इतनी हिकमत है तो वो तो अलीम कुल है, वो तो हिकमत से भरा है। आप उसी की हिकमत को इस्तेमाल करके इस बात को, इस भेद को जब समझ चुके हैं, इस बात को याद रखें कि यू आर सेव लाइफ दिस एम्प्टी बॉक्स। अब इस खाली बर्तन की तरह अपने आप को खाली के रखें। इससे पहले आपने पूरा करके और चीजें इकट्ठी की है। बाइबल के तो बड़ा पुराने आयत में बड़ी खास एक वर्स है, उसमें लिखा हुआ है कि खजानों की तलाश करना, खजानों की तलाश करना बादशाह के बेटों के सुपुर्द है। हालेलुया, नस्ली लोगों के सुपुर्द है। और जो कूड़ा करके इकट्ठा करते हैं वो कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। मतलब आप कचरा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम क्या है सोच रहे हैं, अगर आप अच्छी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं तो आप क्या है अपने अंदर क्या भर रहे हैं। अगर आप गंदी चीजें अपने अंदर भर रहे हैं तो फिर आप वही हैं, और अगर आप अच्छी चीजें भर रहे हैं तो शैतानों का फिरका है। खुदावंद आपको भरना चाहता है, सेम लाइक दैट। वो आपको मूव करना चाहते हैं, वो आपको शेप देना चाहते हैं। वो पहले आपको उसने बना दिया इंसान, अब रूहानी तौर पर आपको शेप दे रहे। इस दुनिया में रहते हुए वो चाहते हैं जिस तरह मेरी उंगलियां घूमे, मट्टी सख्त ना हो। सख्त तभी होती है इंसान की मट्टी जब उसमें गुरूर आ जाता है। खुदा कहता है तो इधर चाहते हो यूनाइट कहता मैं तरसीस को जाता, खुदा कहता है नैनवा को चलो वो तरसीस को जाता, तो फिर मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं मेरे नाल इंज क्यों होता, मैं तो खुदा की गल भी सुनना, खुदा में ना कलाम भी करता, मेरे नाल इंज क्यों होता। दैट मीन्स कि खुदा की आवाज को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इन्होंने आवाज को सुना, अमल नहीं किया तो क्या होगा, नुकसान उठाया। आवाज आप भी सुन रहे हैं, अमल नहीं करेंगे तभी नुकसान। बाइबल मुकद्दस बताती है कि आखिरी आयत में सारी वो निशानियां जो बाइबल मुकद्दस में लिखी वो पूरी होगी। अगर आज अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो नुकसान है। खुदा आपको कलाम से भरना चाहता है, खुदा आपके भरने को आजाद करना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में कलाम को नाजिल करना चाहता है, खुदा आपको भरना चाहता है। इसलिए जरूरी है कि आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो और अपने घराने के लिए बाइस से बरकत हो। बाइबल मुकद्दस की तालीम बहुत जरूरी है। वो आपको शेप दे रहा है, वो भी आपको बताता है कि आपने इस तरह से चलना, और शेप देने का सबसे जबरदस्त जो टाइम है वो भी आपको बता रहा है। इस शैली की मैं आपको शेप देना चाहता हूँ, मैं आपको डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं रूहानी तौर पर आपको भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को खाली करें और खाली बर्तन की तरह मेरे सामने आ जाए। मैं आपको भरना चाहता हूँ। आपको डिजाइन जब उसने आपको इतना खूबसूरत बना है तो आपको रूहानी तौर पर भी खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, आपको डिजाइन करना चाहता हूँ। इस बात को याद रखें कि आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम दुआ करें। खुदा पाक खुदा बैठे खाली खुदारी की जिंदा आसमानी बात हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, खुदा जितने लोगों ने तेरी आवाज को सुना है, तो इनसे कलाम इनसे बोल। जितने लोग आवाज को सुने अपने दिलों पर हाथ रखें, सभी अपने दिलों पर हाथ रखें, खुदा से कहें खुदा मैं अपने दिल को खाली करता हूँ, मैं अपने दिमाग को खाली करता हूँ, मैं अपने आप को खाली करता हूँ। तो मुझे अपने कलाम से मेरे घर में अगर इन चीजों
मुझे कलाम से भर, तो मुझे अपने मुकाशनात से भर। सभी अपनी जुबान को खोले, ये वक्त है आपके ग्रामों की बहाली, ये वक्त है आपकी खुशहाली। वो आपसे कलाम करना चाहता, वो आपके बच्चों को बरकत देना चाहता, वो आपके बच्चों के फ्यूचर का जिम्मा लेना चाहता। आज वो आपको इस्तेमाल करना चाहता। आज से पहले आपकी जिंदगी जैसी तैसी थी, अभी वो आपके ग्रामों का आपकी जिंदगियों को भाव देना चाहता। कहिए उससे कलाम तो मुझे भर, तो मुझे अपने कलाम से भर। मैं आज खाली करता हूँ आपको, और कलाम आज के सारे कलाम के लिए इंतजार करो। कलाम को डिजाइन करो, जैसे जैसे तू अपनी उंगलियों को कलाम के वसीला से एक को मोड़ कर, ये सख्त मट्टी की तरह बनकर अपनी सूरत, अपनी शरीर निकाले, बल्कि रूहानी तौर पर नरम हो जाए। कलाम अपने आप को आजिज़ करे, अपने आप को अलीम करे, ताकि कलाम से इनको तरतीब दे, तो इनको शेप दे, तो इनसे कलाम कर, इनको डाल जैसे तू डालना चाहता है, इनको डाल, इनसे कलाम कर। मैं तेरी शुक्र